So once again, welcome back to all the students of Pride Center School and all the students worldwide. So I am Engineer Kumar Harshvardhan and I have been taking your physics class on behalf of Pride India Central School, Radham Khagriya, Mehenskut, and we have been going through the chapter gravitation. Okay, so today we will discuss the rest of the portion. So very few portions are left. So today we will be discussing about the number one is the thrust and the pressure. The number two is the density. We'll be discussing about density. What is density? Relative density. And the third portion that has been deleted from your chapter is the Archimedes principle and the buoyancy. Okay, that also I will be telling you once the school reopens. I'll be telling you about that. I'll give you an idea about that. What is Archimedes principle and what is buoyancy and how is it applicable in our day-to-day life. So for today, we'll go to the topic thrust and pressure. Thrust and pressure. What do you understand by thrust and pressure? So let us start with a simple example or a simple experiment. Better I can say with a simple experiment. Let us understand this with a simple experiment. Okay. Now suppose I take this. This is a wooden surface. This is a wooden surface. I take this. Now if I take my thumb and start to press here, if I take my thumb and start to press here, is my thumb able to go inside it, or is my thumb able to make any dent in it, or is my thumb able to make any hole in it? No. But on the other hand, if I take a small pin, suppose if you take a nail, if you take a nail, and suppose let us consider this as a hammer. If you take a nail, if you put the nail here and start to hammer it, the nail goes inside it. For example, if I take this nail, I plug out this nail from here, I put the nail here, मैं यहाँ से nail को निकालता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ और फिर उसे जो है हैमर से, हथौड़े से ठोकना शुरू करता हूँ, तो क्या वो अंदर जाएगा? हाँ, वो अंदर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? किस कारणवश जो है ऐसा हो रहा है? हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज को, मान लीजिए कि अगर वॉल है, मैं अपने थंब से वॉल को प्रेस करता हूं तो मेरे थंब जो है इसमें कोई भी छेद नहीं कर पाता है इसके मुताबिक। वही अगर मैं एक यहाँ पे नेल यहाँ पे मारूंगा तो वो उसमें छेद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा पढ़ेंगे आज। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? This happens because when we press this with our thumb, what happens? There is a more area that is covered, है ना? Area that is covered is more. कितना एरिया कवर कर रहा है ये आप देख पा रहे हैं? इसमें कितना एरिया कवर कर रहा है? The area that is covered is this much. The area that is covered is this much area, है ना? ये इतना एरिया कवर कर रहा है, इतना बड़ा एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है। इसके कारण क्या है? तो प्रेशर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमें पता है क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमें पता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इफ एरिया इंक्रीजेस, दिस मीन्स इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, एंड इफ एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देना है ना, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट। इट मीन्स दैट इफ एरिया इंक्रीजेस, ये एरिया देखिए कितना इंक्रीज हो गया, इतना बड़ा एरिया हो गया हमारा। तो इफ एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, अब इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या हो रहा है? वो कम हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, इफ एरिया डिक्रीजेस, अगर मैं यही निकाल लूं और ये एक छोटा सा कितना होगा, ये छोटा सा इसका पिन होल होगा, बस इतना ही पॉइंट पे होगा, है ना? अगर ये नेल होगा तो सिर्फ इतने पॉइंट पे होगा। तो क्या होगा? इफ एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। और क्योंकि एरिया डिक्रीज होने के कारण क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। तो क्या होता है? जैसे हम हथौड़े से नेल को मारते हैं वो अंदर चले जाता है, लेकिन हमारा हाथ जो है, हमारा थंब जो है वो नहीं जा पाता है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा हो जाता है और उसके कारण जो है प्रेशर बहुत ही डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम ये लिखेंगे, our thumb does not go inside
the wooden box or anything like inside the wood or inside a wooden box or inside the wood, because the area covered by our thumb is much larger, and hence the, what is very important, the force per unit area this is very much important. The force per unit area on the wall is smaller. The force per unit area on the wood, or a wood likho, not the wall, we are talking about the wood, on the wood is smaller. The force per unit area on the wood is smaller, and hence our thumb does not go inside the wood, इसमें वही मैंने आपको बताया क्या होता है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ज्यादा होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया बहुत ही छोटा हो जाता है यहाँ पे, है ना, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत बड़ा हो जाता है, और उसके कारण जो है प्रेशर ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाता है, प्रेशर जो है ड्रास्टिकली स्मॉल हो जाता है, और इसके कारण जो है हमारा थंब जो है इसमें नहीं जा पाता है। उसी के बनिस्पत अगर हम किसी नेल को लेते हैं, उससे पॉइंटेड होता है, इतनी जगह में वो फिट हो जाएगा, तो क्या होता है, फोर्स पॉइंट एरिया जो है बहुत बड़ा हो जाता है, एरिया बहुत ही छोटा है ना, एरिया यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा है, तो जब छोटे एरिया पे हम जोर से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो जल्दी उसकी बनिस्पत अंदर जाएगा। अगर मैं अपने थंब को रखूं और आप यहाँ मेरे थंब पे हथौड़े से मारेंगे तो शायद मेरा थंब इसके अंदर नहीं जाएगा, लेकिन मेरा थंब यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, वहां खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नेल को वहां पे मारते हैं तो क्या होता है, नेल चले जाता है, क्योंकि एरिया जो कवर करता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं इसकी ओर। तो हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, वेयर P is nothing but the pressure, F is nothing but the force, A is nothing but the area। ये आपको याद रखना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया, सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन the area of the object। The effect of force depends upon the area of the object। अगर एरिया कम होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स कम होगा। और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, द वेट ऑफ द बॉडी ऑल्सो एक्ट्स एज अ फोर्स as it always acts in the downward direction। The weight of the body, the weight of the body, है ना, वेट जो उसमें वजन होता है, वेट ऑफ द बॉडी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। द वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स, द वेट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स विच इज always acting in the downward direction, in the downward direction। मतलब क्या, अगर इसमें देखिए, इसमें कोई वेट है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो क्या ये गिरना शुरू हो जाता है? क्यों? क्योंकि इसका एक अपना मास है, इसका एक अपना वेट है, उसके कारण जो है ये गिरना शुरू हो जाता है। वो उसे क्या करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा, मुझे अपने हाथों से इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे कुछ नहीं करना, इसे छोड़ देना और ये गिरना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है, दैट वेट स्टार्ट्स
जो वेट है इसका, दैट वेट स्टार्ट्स टू पुल इट डाउनवर्ड्स, वही वेट जो है इसको नीचा खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी है, समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप इसे समझेंगे तो आप बेसिकली थ्रस्ट और प्रेशर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। थ्रस्ट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ फोर्स, थ्रस्ट इज नथिंग बट एक्चुअली इट्स अ फोर्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ, जब भी पायलट जो है हवाई जहाज उड़ाते हैं तो उनके पास एक गियर लीवर होता है, वो उसको पुश करते हैं, तो उस पर ना फोर्स नहीं लिखा रहता है कितने फोर्स से पुश करना है, उस पर लिखा रहता है कितने थ्रस्ट हमको अप्लाई करना है, कितना थ्रस्ट हमको अप्लाई करना है। तो थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट वही है कि जो पावर करता है इंजन को, जो एरोप्लेन के इंजन को पावर करता है। अगर ये उससे ज़्यादा जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में, कार में आप एक्सीलेटर जितना ज़्यादा दबाएंगे गाड़ी उतनी तेज भागेगी। तो एक्सीलेटर से क्या मिलता है हमें? गाड़ी को थ्रस्ट मिलता है। थ्रस्ट क्या है? मतलब गाड़ी को आगे बढ़ने का उसमें क्या जो है ताकत मिलती है गाड़ी को आगे बढ़ने की। तो वही ताकत को हम थ्रस्ट भी कहते हैं, उसी ताकत को हम कहीं कहीं फोर्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बनाना है। In the figure given below, two bricks are placed in different positions in different position on the ground। दो ऐसे ब्रिक रहेंगे, ब्रिक मतलब ईंट रहेंगे, जो अलग अलग पोजीशन पे ग्राउंड पे रखे हुए हैं। तो आपको बताना है कहां पे जो है प्रेशर ज्यादा होगा और क्यों। इन विच ब्रिक the pressure exerted by the brick on the ground, that is the pressure exerted by the brick on the ground, pressure will be more and why। आपको ये इलस्ट्रेट भी करना है कि किस ब्रिक में जो है प्रेशर ज्यादा होगा और क्यों होगा। पहला ब्रिक आपका ये है, ब्रिक ए इस पोजीशन पे रखा हुआ है, दूसरा ब्रिक आपका बी है जो इस पोजीशन पे रखा हुआ। अब इस दोनों ब्रिक में जो है कौन सा ब्रिक जो है ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना, और क्यों करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां तक ये आपका होमवर्क है जो आपको करके बताना। मैंने आपको बहुत कुछ इसमें बताया है कैसे होता है, तो आपको वही अप्लाई करना है यहाँ पे और आपको बताना है कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, और क्यों हो रहा है। इन द फिगर गिवन बिलो, two bricks are placed in different positions on the ground, in which brick the pressure the pressure exerted by the brick will be more on the ground and why, और वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। ये आपका लगभग लास्ट ही यूनिट है, लास्ट ही पोर्शन है इसका। इसके बाद जो है ये चैप्टर ग्रेविटेशन जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो फिजिक्स में आपका हाफ ऑफ दी पोर्शन जो है फिजिक्स में आपका खत्म हो गया। सिर्फ बाकी हाफ पोर्शन ही बचा हुआ है, क्योंकि जो पोर्शन डिलीटेड है वो इस साल नहीं पढ़ानी है। सीबीएसई के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो वही बात है कि जो बाकी है अब थोड़ा सा ही आपका बाकी, इसके बाद सिर्फ और आपको शायद 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 2 या 1.5 चैप्टर और पढ़ने हैं इसमें। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे द प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द 2 फैक्टर्स, दैट इज ऑन व्हाट फैक्टर्स दैट द प्रेशर डिपेंड्स, on what factors does the pressure depend, है ना, किन फैक्टरों पे प्रेशर डिपेंड करता है। on what factors does the pressure depend, so the pressure depends upon the 2 factors। number 1 is the force applied, पहला है force applied, and number B is the area of contact, नंबर बी इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जिन 2 चीजों पे प्रेशर डिपेंड करता है वो है वो है द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, एंड नंबर बी द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कितने एरिया के कॉन्टैक्ट में है।
तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स का एस आई यूनिट क्या है, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। इस एस आई यूनिट ऑफ force is what, the SI unit of force is Newton, whereas the SI unit of area is मीटर स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो प्रेशर इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल, पीए। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, सो द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज व्हाट, पास्कल, which is also said to be as Newton per meter square. Very very important. The SI unit of pressure is Pascal, which is said to be as Newton per meter square. और ये कैसे आया, मैंने आपको ये यहाँ से डिराइव करके दिखाया हुआ है कि ये कैसे आया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, SI unit of force is Newton, whereas SI unit of area is meter square, that is square meter. Therefore, pressure is equal to force per unit area, that is Newton per meter square. This can also be written as, if you put a slash like this, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर टू द पावर -2। अगर आप यहाँ पे स्लैश नहीं देते हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ स्लैश दिया है तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही सही है आपका, इस दोनों तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप स्लैश यहाँ नहीं देते हैं तो आपको मीटर पे टू द पावर ऑफ -2 देना पड़ेगा, है ना। अगर आप यहाँ स्लैश देते हैं तो ये माइनस हट के सिर्फ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which is also said to be as पास्कल। सो द SI unit of pressure is पास्कल। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ एक सवाल करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक सवाल करते हैं। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन a force of say 200 Newton is applied to an object a force of say 200 Newton is applied to an object of area 2 meter square. So find the pressure, or कैलकुलेट द प्रेशर। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम पहले लिखेंगे गिवन, जब भी एग्जाम में आपको आता है तो ऐसे लिखना है पहले। गिवन क्या क्या है, फोर्स आपको दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन। दूसरा क्या दिया हुआ है, एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो मुझे पता है प्रेशर निकालना है, फोर्स कितना दिया हुआ है 200, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रेशर इज इक्वल टू 100 पास्कल। प्रेशर इज इक्वल टू 100 पास्कल। इस तरह से जो है हम इसका आंसर निकालते हैं। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे, जो आपका होमवर्क होगा। ये आप समझ गए होंगे, वेरी सिंपल है यहाँ पे। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। A force of 400 Newton is applied. A force of 400 Newton is applied to an object. Having an area of 2
20 meter square. So find the pressure. Find the pressure. Okay. एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, होमवर्क है ये आपका। The pressure applied on an object is, the pressure applied on an object is 200 Pascal. The pressure applied on an object is 200 Pascal or 200 Newton per meter square. With a force of say 10 Newton. So find the area on which the force is applied. Find the area on which the pressure or the force is applied. तो ये दोनों क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, पहला है a force of 400 Newton is applied to an object having an area of 20 meter square. Find the pressure. दूसरा है the pressure applied on an object is 200 Pascal, that is 200 Newton per meter square. Also you can say with a force of say 10 Newton. So find the area on which the pressure is applied. तो find the area, कितने एरिया पे है वो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूं। हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ सवाल है आगे की ओर जो हमें देखना है ना। हम एक और चीज हमें देखना है कि प्रेशर इज इक्वल टू, हमने लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू नथिंग बट thrust. Force is equal to nothing but thrust, है ना। force is equal to nothing but thrust, है ना। force अप्लाई होता है, F is equal to m into g होता है। तो वैसे आपको करना है, क्या करना है कि यहाँ पे फोर्स जो है, जो थ्रस्ट है वो भी फोर्स के बराबर ही होता है। मान लीजिए कोई एक बॉडी A है, कोई एक बॉडी B है, ठीक है। इसको अगर हमको मूवमेंट करना है, इसको आप तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। इधर से हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इस पे, है ना। उसी प्रकार अगर हमको इस बॉडी को ऊपर करना है, जैसे एक थ्रस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये जो फोर्स और ये थ्रस्ट है, ये क्या होता है, दोनों एक ही चीज होते हैं, बराबर होते हैं। ये एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम किसी, ये एक ऐसी शक्ति है जिससे कि हम किसी बॉडी को पुश या पुल कर सकते हैं, उसी को हम फोर्स बोलते हैं, है ना। छोटे क्लास में आपने पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है, पुश और पुल इन द बॉडी। तो क्या होता है, जब हम पुश करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, इसी पुश को हम क्या बोलते हैं, इसी पुश को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो वी कैन आल्सो से दैट pressure is equal to force per unit area or also is equal to thrust per unit area. It is also equal to thrust per unit area, THRUST, thrust per unit area। ये दोनों चीज जो है क्या होता है, बराबर ही होता है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि कहीं पर दिया रहेगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, कहीं पे आप ले सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर आपके सवाल में दिया हुआ है कि द थ्रस्ट अप्लाइड ऑन द बॉडी इज से 20 न्यूटन, तो इसका मतलब है क्या, फोर्स अप्लाइड ही है। थ्रस्ट अप्लाइड मींस फोर्स अप्लाइड, सेम चीज, दोनों बोथ आर द वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो हम अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्या कि व्हाई स्कूल बैग्स, मैं आपको एक दो करके बताऊंगा और बाकी आपको खुद से करना है ना। आप छोटे बच्चे नहीं है नर्सरी के कि आपको हर एक चीज जो है मुंह में खिलाई जाए, आपको खुद से भी करना चाहिए, है ना। तभी आपको ज्ञात होगा कि आप कहाँ सही और कहाँ गलत जा रहे हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ सही और कहाँ गलत जा रहे हैं। अगर सब कुछ मैं आपको लाइन बाय लाइन लिखा दूंगा, लाइन बाय लाइन बता दूंगा, तो फिर उसमें ये पर्पस सर्व नहीं करता है। आपको पढ़ाने का कोई पर्पस सर्व नहीं करता है, आपको पढ़ने का भी कोई पर्पस सर्व नहीं करता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि व्हाई डू स्कूल बैग्स हैव wider strips। स्कूल बैग्स के पे जो है, जब आप पहनते हैं स्कूल बैग को, यहाँ पे स्कूल बैग नहीं मिलता, मैं आपको दिखाता, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स होती है वो बड़े होते हैं, वो चौड़े होते हैं, है ना। यहाँ पे जब आप स्कूल बैग टांगते हैं तो यहाँ पे जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या होते हैं, वो चौड़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है,
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके स्कूल बैग में क्या होता है, वजन बहुत ज्यादा होता है ना। आपके स्कूल बैग में क्या होता है, वजन बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत सारी किताबें होती हैं। जो आपको किताबें जरूरत है ले जाने की वो भी होती है, और बहुत सारे बच्चे तो जरूरत नहीं है वो भी किताबें लेके चले जाते हैं ना। तो इतनी ज्यादा वजन होता है, तो अगर उसका स्ट्रिप छोटा होगा, अगर उसी का स्ट्रिप छोटा होगा, मान लीजिए इतना चौड़ा ना हो कि वो इतना ही सिर्फ चौड़ा होगा, तो क्या होगा, आपका जो एरिया पे जो प्रेशर पड़ेगा वो एरिया कम है। तो क्या होगा, एरिया कम होने से क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हमने पढ़ा है क्या, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, एरिया जैसे घटा प्रेशर आपका बढ़ गया, एरिया घटा प्रेशर बढ़ गया। तो चूंकि यहाँ पे एरिया घट जाएगा और चूंकि आपके बैग में किताबें बहुत ज्यादा है, तो एरिया घटा प्रेशर बढ़ेगा, आपके शोल्डर्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आपके शोल्डर्स पे तनाव ज्यादा होगा। इसलिए क्या करते हैं हम, बैग्स के जो स्ट्रिप्स को है उसको बड़ा बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं, ताकि क्या हो, अगर एरिया बढ़ जाएगा, अगर एरिया वहां बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका प्रेशर जो है वहां पे घट जाएगा। इसलिए चौड़ा बनाते हैं, ताकि अगर एरिया बढ़े तो प्रेशर जो भी भार है आपके स्कूल बैग का, वो भार क्या है, ज्यादा दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो, ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो, और उसके कारण जो है प्रेशर आपके ऊपर कम पड़े, आपको जो है दर्द ना हो उसके कारण, ताकि आपके कंधों पे ज्यादा दर्द ना हो। इसलिए जो है हम इसको क्या करते हैं, स्कूल बैग्स को जो है वाइडर स्ट्रिप्स रखते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे, इसका सवाल का जवाब आप समझ गए होंगे। आप इसे अंग्रेजी में लिख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे हर कोई चीज़ आपको अंग्रेजी में लिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे कि अगर मान लीजिए हम चाकू ले रहे हैं और एक चाकू ब्लंट है, मतलब जो है उसमें धार नहीं है, वो चौड़ा हो गया कि बहुत बार यूज़ कर करके वो चाकू जो है, क्या बोलते हैं आप लोग, मतलब चाकू का जो वो जिस पोर्शन से काटते हैं उसे, वो जो नोकीला होना चाहिए वो जो है चौड़ा हो गया है, उसकी नोकीलेपन खत्म हो गई है। और दूसरा जो नाइफ है वो बहुत ही नोकीला है। तो दोनों नाइफ में से क्या होगा, कौन से नाइफ पे हम इजिली कट कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, है? दूसरा सवाल हमारा यही है, व्हाई डज अ शार्प नाइफ कट्स बेटर why does a sharp knife cuts better than a blunt knife, है ना। एक शार्प नाइफ जो है वो एक ब्लंट नाइफ से ज्यादा बेहतर क्यों काट सकता है, वही बात है। अगर कोई चीज नोकीली है तो उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, फिर से एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है उसका घटेगा, प्रेशर जो है उस पर बढ़ जाएगा। आप उतना ही प्रेशर, मैंने सपोज मैंने एक हाथ से चाकू पकड़ा, है ना, उस पर उतना ही प्रेशर डाल रहा हूँ। मान लीजिए दो चाकू हैं, एक चाकू जो है बहुत ही धार वाला है, दूसरा चाकू जो है बहुत ही ब्लंट है, ठीक है। दूसरा चाकू जो है बहुत ही मोटा है, ये जो पोर्शन है जिससे मुझे काटना है ये उसका बहुत ही मोटा हो चला है, ठीक है। अब ये ए नाइफ है, ये नाइफ बी है, इसका ये पोर्शन जो है बहुत क्या है, बहुत शार्प है, इसका ये जो पोर्शन है बहुत ही शार्प है, बहुत ही पतला है। अब मैं इस पे मान लीजिए प्रेशर लगाऊंगा 20 पास्कल का, इस पे भी मैं प्रेशर लगा रहा हूँ 20 पास्कल का, दोनों पे मैंने सेम प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, ये नाइफ अच्छे से काटेगा, ये नाइफ अच्छे से काटेगा, ऑब्वियसली जो है ये नाइफ अच्छे से काटेगा, क्योंकि क्या, इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, क्योंकि बहुत धारदार है, बहुत ही धार है, तो बहुत ही पतला है नीचे से, उसका जो काटने का पोर्शन है वो बहुत ही पतला है, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इट मींस दैट एरिया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कहने का मतलब, मैं ये हजारों बार वीडियो में कह चुका हूँ, ऑनलाइन वीडियोस में, और मैं स्कूल में भी हजारों बार कहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब है कि एक का घटना दूसरे का बढ़ना, और एक दूसरे का बढ़ना फिर एक का घटना। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर मैं कहूंगा, इसका मतलब है एक का बढ़ना दूसरे का भी बढ़ना, एक का घटना दूसरे का भी घटना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें क्या हो गया कि एरिया घटा प्रेशर बढ़ा, मैं उतना ही प्रेशर इस पे भी लगा रहा हूँ सेम 20 पास्कल, उतना ही प्रेशर इस पे भी लगा रहा हूँ सेम 20 पास्कल, लेकिन उसी प्रेशर में ये नाइफ मेरा अच्छा कट कर पा रहा है और ये जो नाइफ है मेरा अच्छा नहीं कट कर पा रहा है। दिस नाइफ कैन कट बेटर, दिस नाइफ कैन नॉट कट बेटर, है ना।
दिस नाइफ विल नॉट कट बटर, क्योंकि इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जा रहा है, और इसमें क्या होता है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जा रहा है, प्रेशर उसके कारण जो है घट जा रहा है, इसलिए उतना ही फोर्स लगाने पे जो है उतना ही प्रेशर लगाने पे जो है दोनों में क्या हो रहा है कि मेरा ये जो नाइफ है अच्छे से काट पा रहा है और ये जो नाइफ है अच्छे से नहीं काट पा रहा है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल है जो आपको खुद से करना है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं वो चीज जो आपको खुद से करना है, वो है कि y इज, जब हम चलते हैं मान लीजिए, है ना, तो क्या होता है कि y इज प्रेशर ऑन द ग्राउंड, y is pressure on the ground more while walking than while standing। ये आपको बताना है कि अगर हम खड़े हैं, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो दोनों पैरों को लेके, तो ग्राउंड पे प्रेशर कम है, जिस जमीन पे मैं जिस धरती पे खड़ा हूं, है ना, तो वहां पे प्रेशर कम है। लेकिन अगर मैं चलता रहूंगा, अगर मैं ऐसे ऐसे करके चलता रहूंगा, तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा जमीन पे। ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही रोचक सवाल है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, गूगल पे ना जाएंगे और थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो आपको ये बहुत ही रोचक लगेगा कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाई डज ट्रैक्टर्स हैव वेरी वाइड टायर्स। ट्रैक्टर्स सबके ऑलमोस्ट बहुत लोगों के पास घर में है, या गांव में लोगों ने देखा है, शहरों में भी ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं कूड़े वूड़े उठाने के लिए, है ना, डंप करने के लिए। तो ट्रैक्टर्स के टायर जो है बहुत ही चौड़े होते हैं, क्यों? Why do tractors have very wide टायर्स, है ना, ट्रैक्टर्स के जो पास जो है इतने वाइड टायर्स क्यों होते हैं, इतने चौड़े टायर्स क्यों होते हैं, है ना, इतने चौड़े टायर्स क्यों होते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाई डू नीडल्स हैव शार्प पॉइंट। नीडल पे जो पास है उसके जो ऊपर है शार्प पॉइंट्स क्यों होते हैं, शार्प टिप्स क्यों होते हैं। व्हाई डू नीडल्स हैव शार्प टिप, टिप बोल लीजिए उसे आप, पॉइंट बोल लीजिए, एक ही है। व्हाई डू नीडल्स हैव शार्प टिप्स। कभी आपने सोचा है कि नीडल्स के पास जो है, जो उसकी ये जो पोर्शन होती है सामने वाली, वो बहुत ही नोकीली, बहुत ही पॉइंटेड, बहुत ही पतली क्यों होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा आपको जानने की ज़रूरत है, और आप मुझे बताएंगे, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि कृपया करके गूगल का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि गूगल से आप आंसर तो निकाल लेंगे लेकिन आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। वाई आर स्टोन्स पुट बिटवीन दी रेलवे ट्रैक्स। आपने देखा है जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं ऐसे होते हैं, ये जो ये होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्लीपर्स बोलते हैं। ये जो बीच में आपका लगा रहता है ये ऐसे ऐसे, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्लीपर्स बोलते हैं, इसे हम स्लीपर्स बोलते हैं। स्लीपर मतलब वो कोच नहीं, जो गाड़ी के कोच को भी स्लीपर्स बोलते हैं, है ना। ट्रेन में जो कोचेस लगे रहती हैं, एक्चुअली उसे कार बोला जाता है, कार, कोचेस भी बोल सकते हैं आप, कार भी बोल सकते हैं। और उसमें स्लीपर होता है ना, सोने वाला जो होता है स्लीपर्स होता है, 1 बर्थ 2 बर्थ 3 बर्थ ऐसा। और जो नीचे पटरी में जो बिछा रहता है, जिसपे पटरी लगा रहता है, आपने देखा हो कंक्रीट का ये बना रहता है, ये जो चीज है ये कंक्रीट का बना रहता है ना। पहले जमाने में लकड़ियों का हुआ करता था, लेकिन लकड़ियों में ये प्रॉब्लम आती थी कि वो समय के साथ सड़ना शुरू हो जाते थे, गलना शुरू हो जाते थे, है ना। और बारिश वारिश होने पे क्या है, धीरे धीरे जो है वो डीके हो जाते थे, खराब हो जाते थे और पटरियां धंस जाती थी। तो फिर उसके बाद हमने आयरन का इस्तेमाल किया है। आयरन का भी इस्तेमाल करने से थोड़ी प्रॉब्लम आती थी कि आयरन में जो है रस्ट आना शुरू हो जाता था, और धीरे धीरे समय के साथ जो है वो भी खराब
होने लगता था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कॉन्क्रीट्स का मतलब अब हम यहाँ पे जो है कॉन्क्रीट्स का यूज करते हैं, जिससे हम बनाते हैं खुद से, जिस तरह से हम घर बनाते हैं उसी कॉन्क्रीट से जो है से जो है इसकी स्लीपर्स बनाई जाती है, जिसपे की रेलवे लाइन जो है खड़ी रहती है। इसके बीच में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या बहुत सारे जो है स्टोन्स डालते हैं यहाँ पे, है ना, डालते हैं, बहुत सारे स्टोन्स डालते हैं, बहुत सारे स्टोन्स लगे रहते हैं यहाँ पे। ये स्टोन्स का क्या काम है, ये स्टोन्स क्यों लगे रहते हैं, और अगर ये स्टोन्स नहीं होंगे तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को, और मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि निरंतर जो भी क्लास आपके पास जाती है उसे ठीक ढंग से पढ़ें, थोड़ा उसका विश्लेषण करें, थोड़ा उसका आकलन करें, और तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस दुनिया में, चीज़ें कैसी कैसी चलती हैं, है ना। सिर्फ उस भावना में ना रहें कि इनायते हो भाई छई, तो इस भावना में नहीं रहें, क्योंकि साइंस जो है सब कुछ प्रूव करता है। ये कोई कहीं से आया हुआ अचानक से चीज़ नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा और हमने मान लिया, क्योंकि पुराने ज़माने के लोगों ने कहा है तो हमने इसे मान लिया है। अब हम आज कुछ कह देंगे तो 100 साल बाद कोई और इसे मानेगा नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे सब कुछ प्रूवन होता है, सब कुछ दिखाया हुआ होता है किस प्रकार से ये होगा। तो इसलिए इसका जवाब मैं चाहता हूँ आपकी ओर से आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक बार स्कूल खुल जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये सब होता है, रेलवे लाइंस की प्रक्रिया क्या होती है, हर एक इंजन के ऊपर जो लगा रहता है, लिखा रहता है, उसका मतलब क्या होता है, किस तरह से रेलवे लाइन पटरियों पर दौड़ती है, और आपका जो है उसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, ब्रेक्स कैसे उसकी काम करती है। तो मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो है आप मुझे इन सभी का आंसर्स देंगे। और मैंने आज तक जितने भी क्वेश्चन सवाल दिए हैं, मुझे एक का भी जवाब नहीं आया है। मुझे पता है स्कूल खुलने के बाद यही बोला जाएगा कि सर हमको तो वीडियो मिलता ही नहीं था। तो कृपया करके मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इन सब चीज़ों में ना पड़े, इन सब गलत चीज़ों में ना पड़े। और मुझे आज तक लेकिन जितने भी मैंने आपको सवाल दिए हैं, करीब बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों को मैंने जो दिए होंगे, लेकिन मुझे एक का भी जवाब किसी भी बच्चे की ओर से नहीं आया। तो वो तो निराशाजनक बात है ही, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, मैं तो आपको सिर्फ कह ही सकता हूँ, आपकी इच्छा है पढ़ना और नहीं पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी, और कृपया करके इसे घर में ठीक से बैठ के पढ़ें, और हो सके तो इन सवालों का जवाब भेजें। और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो 24/7 आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम बस सिर्फ थोड़ी सी टॉपिक आपकी बाकी है 10-15 मिनट की क्लास होगी, जो है एक डेंसिटी के बारे में और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, उसको पढ़ लेंगे। तो फिर हम इस चैप्टर को, ग्रेविटेशन को, जो बहुत बड़ी चैप्टर है, आपकी सबसे बड़ी चैप्टर है फिजिक्स की, उसे हम अच्छी तरह से समाप्त कर लेंगे, है ना। इसमें कई दिन हमने दिए हैं, हमने इसमें जो कई दिन लगाए हैं इसे पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं था इसे करना, और इतनी छोटी भी चैप्टर नहीं है, काफ़ी बड़ी चैप्टर है, और इसे समझने के लिए थोड़ा सा विश्लेषण करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्राइमरी ईयर सेंट्रल स्कूल एंड ऑल द गार्जियंस ऑफ प्राइमरी ईयर सेंट्रल स्कूल एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड, इतना प्यार दिखाने के लिए, इतने हमारे वीडियोस को सराहने के लिए। और मैं यही आशा करता हूँ कि प्राइमरी ईयर सेंट्रल स्कूल के सभी बच्चे जो आएंगे, वापस आएंगे पूरे उमंग से, पूरे उत्साह से आएंगे, और फिर जो है हम अपनी दिनचर्या को नॉर्मल ढंग से फिर जिएंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।